So emergency awareness के लिए usually जैसे कार्डियक अरेस्ट आया किसी को, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को क्या करना चाहिए? एस्पिरिन की गोली लेना, उसको च्यू कर लेना और नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है, नियरेस्ट बड़ा अस्पताल। जैसे ही अस्पताल पहुंचे सीधा कैथ लैब, सीधा आर्टरी खोलो, क्योंकि वो हार्ट अटैक को बचाता है, लाइफ को सेव करता है। So what I've written about the message for the host, wish you the very best. Being a doctor and a podcast is real service to public because you educate and shape the future of masses. Thank you, Sari. If interventional cardiology in India has had a defining force over the last 4 decades, it is him. With more than 60,000 angiographies and over 25,000 angioplasties, global recognition and leadership at Fortis Healthcare, he is not just a doctor, he is an institution in himself. Chairman of the Fortis Healthcare Medical Council, a pioneer who brought advanced techniques like TAVI and complex angioplasties to India, and a teacher who has trained generations of cardiologists. Honored with the Padma Bhushan and Padma Shri, and a name that commands respect in every cath lab across the country. Today, we go beyond the accolades to understand the journey, the mindset, and the vision of Dr. Ashok Seth. Welcome, sir. Welcome to the podcast Behind the White Coat. Thank you very much, Dr. R.A. Pleasure to be with you. Pleasure to be talking to you. Thank you, sir. It is my pleasure as well. Sir, you आप इतनी बड़ी हस्ती हैं. What drew you towards cardiology? Was there a defining moment in your life in childhood जब आपको पता था कि मुझे यही करना है? What was the feeling that time? So defining moment तो था डॉक्टर बनने का, I would say. And the defining moment was because my father's a doctor. And I used to see कि patients revered him. वो आते थे, पैर छूते थे, and he was saving lives, and he was a very sincere doctor. That actually influenced me quite a lot. और मेरे को अभी भी याद है कि I think I was 4-5 years old, जबकि मेरी बहन की एक डॉल थी, और मैंने सोचा कि इस डॉल के ऊपर ऑपरेशन करना चाहिए, इसका कुछ निकालना चाहिए अंदर से. So I remember that incident where I took needles and father के तो घर पड़ी होती थी, syringes, etc. And I poked numerous syringes into that doll, plastic doll, and even slit open the abdomen of the doll. की ऑपरेशन करा. My sister cried after that, saying, मेरी अच्छी खासी doll को तुमने क्या कर दिया? I said, maybe those were the first talents of a doctor coming through. Sure, You had doctorate. So that was one. But defining moment, as we say, कि ठीक है, doctor had been a noble profession. So एक automatic थी in our times when we were in school, there were only two things that you could do: either become an engineer or become a doctor. और father भी चाहते थे doctor बनने, but लड़का doctor बने, England जाए, etc. And so that was the doctor बनने की emphasis. Very हाँ. But cardiology was a total default situation. When I was in England and training in medicine first and then going into super specialities, because I was there around for, I was abroad for 10 years. As I was training, actually cardiology had nothing. Cardiology is totally stethoscope. Echo भी नहीं होता था उस वक्त, और न ही कोई प्रोसीजर्स होते थे. इनफैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक उन दिनों होता था कि 4 हफ्ते बिस्तर पे सीसीयू में रख दो और ऑक्सीजन देते रहो. दवाइयाँ भी कोई खास नहीं थी. बट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बड़ी फैसिनेटिंग थी. उसमें तो एंडोस्कोपीज हो रही थी, कोलोनोस्कोपी हो रही थी, ईआरसीपी हो रही थी, गॉलस्टोन निकाले जा रहे थे, तो प्रोसीजर्स ज़्यादा थे. इंटरेस्टिंग थी. सो ऑटोमेटिकली अगर फिजिशियन बन ही गया था, सो ऐसे एटलीस्ट प्रोसीजर्स होने चाहिए जिसमें हम कुछ कर सकें. And so it was my choice was clearly gastroenterologist, and I was doing a lot of endoscopies in my training programs, etc. And then finally, जो नौकरी में चाहता था for training in ERCPs, I didn't get that job. It was one of the university hospital jobs, and I was so focused towards it, वो मिली नहीं. And of course, I was also based in a university hospital where the cardiology job came up, the cardiology fellow job, the registrar in cardiology कहते हैं. And I said, चलो यही कर लेते हैं cardiology, stethoscope लगा के घूमेंगे. So from an endoscope, I transferred myself to a stethoscope. And as luck would have it, and this is what I say, fortune, default strategy, कि उसी दौरान में एंजियोप्लास्टी, जो कि बड़ी क्रूड टेक्निक थी उन दिनों,
was becoming more popular, or should we say थोड़ी spread हो रही थी. और our university hospital जिसमें मैं था, and our जो consultant के साथ था, he became the third person in the UK to start balloon angioplasties. Oh. ठीक है, ये 84-85 की बात है. और फिर हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि मैं उनके साथ, 86 की बात है ये, कि मैं उनके साथ उनका ही फेलो था, उनका रजिस्ट्रार था. तो ऑटोमेटिकली उनके सीखते सीखते मैं भी वही चीज़ सीखना शुरू कर दिया, बिकॉज आई वॉज हिज फर्स्ट असिस्टेंट. और ये एक दौरान है जो कि मैं कहता हूँ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन. I got so passionate about balloon angioplasty, and that is why I think my whole that is transformational. Of course, the consultant has been a great mentor to me. He trained me, and then of course the whole career changed, and the whole that technique. I think trajectory change होगी angioplasty की trajectory. जो so true technique is now that's the cornerstone of therapy. And thankfully, because I was one of the first few in the country to start angioplasty, Angioplasties. it is a transformational journey. Let go. So सोचिए कि वो कहते हैं ना cardiologist out of a default strat. So we जो बनना नहीं चाहते थे वो बन गए. No, sir, if you look back, it's not always a stroke of luck. You had that go-getter attitude, and you wanted to do something. And अगर आपको gastroenterology में you did not get the job, but you आपने हार नहीं मानी. You went into cardiology. So I feel that that go-getter attitude landed you into cardiology, and then that trajectory of things happened. Of course, that has been there. कि एक वक्त कार्डियोलॉजी में आया और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में आया. So then of course I was very clear that I would push the boundaries, और मैं boundaries को ऐसा push करूँगा that अपने हिंदुस्तान को वो चीज़ें दे सकूँ जो कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर होती हैं तो मैं उससे बेटर हिंदुस्तान को दे सकूँ. सर वैसे भी हमारे इंडियन हेल्थ केयर इज़ फार फार बेटर फ्रॉम अदर कंट्रीज. आई डोंट वांट टू नेम देम दो. आई हैव बीन आई वाज देयर इन जर्मनी फॉर क्वाइट सम टाइम. I mean, my relatives are in US. I have a choti moti patients overseas who consult me. Indian healthcare का कोई जवाब नहीं है. And that is true. Sir, do you remember your first angioplasty? What were you feeling at that time? So मेरी first angioplasty तो इंग्लैंड में ही थी क्योंकि मैं वहाँ पे कर रहा As था. a consultant? Yeah, because I was then a CV registrar and I do independent angioplasties. But so वो तो एक जर्नी है ही. But हिंदुस्तान में जब वापस आया, and there were only 4-5 of us, I think 6 of us in the country who were doing angioplasties. और उनमें से मैं सबसे यंगेस्ट था, तो बाकी सब तो प्रोफेसर्स थे at various institutes in our country. तो yeah, मेरे को याद है because मैंने I started the first angiogram and the first angioplasty so कहते Scotts Heart Institute हमने start ही किया था. 88 अक्टूबर की बात है. And I was the chief of invasive cardiology. So सुकत जब start की angiography angioplasty, I still remember my first angioplasty. जो कि of course उस वक्त बड़ी discrete blockages होती थी. उस वक्त साइंस ही different थी, क्रूड थी. बट उस वक्त जो क्रूड साइंस थी वो उस वक्त की बेस्ट मानी जाती थी. बट क्लियरली सर्जरी, बाईपास सर्जरी तो पहले ही काफ़ी सालों से एस्टैब्लिश थी एज अ टेक्निक. और सर्जन्स को हमें सर्जन को स्टैंड बाय पे रखना पड़ता था जब हम बलून एंजियोप्लास्टी करते थे. तो बड़ी क्रूड टेक्निक्स थी और हम उसको रिफाइन कर रहे थे. मेरे को पहला केस भी याद है, बट मोस्ट रिमार्केबल वाज तो आई थिंक छठा केस था. एंड आई टेल यू व्हाई. इट वाज a funny incident. One of the very well-to-do individuals of the society in Delhi, उस वक्त तो लोग बाहर जाते थे सब ट्रीटमेंट कराने, एंजियोग्राफी भी कराने बाहर जाते थे, बाईपास सर्जरी कई लोग बाहर ही जाते थे. और उसकी एंजियोप्लास्टी की और बड़ा खुश हुआ. सर्जरी अवॉइड हो गई, सर्जरी नहीं हुई मेरी, आप तो ग्रेट हो. और उसने एक उस वक्त वो होते थे कैसेट रिकॉर्डर्स, तो उसने एक कैसेट रिकॉर्डर प्रेजेंट कर दिया कैथ लैब को कि ये आप सुनिए. एंड जब आप करते हो तो मैं भी यही कहता हूँ कि अगर उस वक्त मेरे को म्यूज़िक सुन रहा होता तो कितना अच्छा लगता है. जब आप लोग कर रहे थे मैं कम टेंस होता तो ये लीजिए कैसेट रिकॉर्डर. तो वो पहला कैसेट रिकॉर्डर कैथ लैब में आया और हमने गाने लगाने शुरू कर दिए. जब एंजियोप्लास्टी कर रहे थे हमने सोचा पेशेंट्स को सुकून मिलेगा, उस वक्त रिलैक्स होंगे. अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट पेशेंट आया और हमने गाना लगाया, हमने देखा नहीं कि कौन सा गाना लग रहा है. अब
एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर खत्म हो गया तो पेशेंट ने एक बड़ी कंप्लेंट लिखी कि हमारे इतना सीरियस प्रोसीजर हो रहा था और डॉक्टर साहब गाना सुन रहे थे, और फिर उसने ये लिखा कि गाना तो ये था कि अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। Oh God. भाई से काश हमें ये भी सोच लेना चाहिए था कि गाना बजा क्या रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल। एंड देन सो यस वी फेल्ट दैट उस वक्त से हमने म्यूजिक बैन कर दिया अपने अपने एंजियोप्लास्टी में। सर इवन ओटीज में मैं भी लगाती हूँ एंड दिस इज अ नाइस लर्निंग कि गाना सुन के सोच तो के सोच लगाओ। के लगाना चाहिए। और फिर मैंने वो कैसेट रिकॉर्डर जो था हाँ। दे दिया नर्स को कि आप ले जाओ घर अपने हॉस्टल में सुनो, अब ये कैथला में नहीं रहे। नाइस लर्निंग सर, क्योंकि मैं अभी इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही सिजेरियन था और गाना ओटी में लगा था, अजीब दास्तां है ये। यूजुअली देर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस फ्रॉम द पेशेंट कि गाना क्यों सुन रहे हो, दूसरा बहुत अच्छा गाना है। तो पेशेंट भी गुनगुना रही थी तो मुझे भी अच्छा लगा, स्पाइनल में होता है ना सिजेरियन। yes. तो शी वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक, आई वाज हैप्पी। Always nice. It's always something. So, coming to the patient's questions, which we, मतलब as doctor, as a gynecologist also, अपनी family में हम देखते हैं, why are we seeing so many heart attacks these days, in 30s and 40s age group today? There's been change in lifestyle. ये तो very clear है, पता है? It's grown by 200% in the youth in the last 15 years. Heart attacks. So heart disease is getting very prevalent, and we're quite clear about it. क्योंकि this is change in lifestyle completely. अब आप देखिए, अगर जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं पिछले 20 सालों में इन द यूथ, ओबेसिटी बढ़ गई है, स्मोकिंग बढ़ गई है, इंक्रीज अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, ईटिंग आउटसाइड बढ़ गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मोस्ट हैबिट्स आर सेडेंट्री. Unfortunately, in addition to that, high blood pressure is increasing in the youth of our country. Stress is a very important factor. आजकल तो competitive lifestyle हो गई है, competitive jobs. I mean, looking at deadlines, meeting deadlines, late working hours. हर चीज़ तो चेंज हो गई है हमारे यूथ के लिए. And unfortunately, in the recent times, pollution, which is another important cause of heart disease, has increased exponentially. अब आप इन सब को पुट टुगेदर करें तो ये से रियली अनफॉर्चुनेटली आवर यूथ हैज बिकम अ कनंड्रम ऑफ ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स. Diseases. और ये सब तो एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स थे जो कि कभी भी हार्ट डिजीज कर सकते थे. सो आवर यूथ इज सकम्बिंग टू दैट. तो अगर हम अब देखते हैं तो हार्ट अटैक्स 60 साल की उम्र में 50% ऑफ द हार्ट अटैक्स हैपनिंग लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज. 25% ऑफ देम आर लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज. अच्छा, ये जो फिगर्स हैं 25% हार्ट अटैक्स लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, वेस्ट में तो रेयरिटी है. हार्ट अटैक्स लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज. So we have transformed ourselves. Each one of us has become a ticking time bomb. आंकड़ों के हिसाब से तो और डरने वाली बात ये है that 20% of the deaths, 1/5 of the deaths in the world from heart disease happen in India. Oh, shocking. So we are actually living in heart disease surrounding us, and unfortunately, elderly की तो ये disease है ही कि arteries तो करोड़ होंगी as time goes on. बट ये जो लेस देन 60 हम देख रहे हैं ना और लेस देन 40 जो देख रहे हैं, इट्स अ वेरी वरिंग फिनोमिनन. बिकॉज जब हम सोचते हैं कि हमारा यूथ, एंड वी से 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन, यूथ. बिल्कुल. नाउ व्हेन वी ट्रांसफर दैट कि ये यूथ में जब इतनी हार्ट डिजीज है और हम जब वो यूथ 60 साल का होगा और 70 साल का होगा तो एक्सप्लोजन ऑफ हार्ट डिजीज ही हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. सो क्या कहते हैं, नेक्स्ट अगर मेडिकल में ब्रांच लेनी है कार्डियोलॉजी ले लो. बट आई मीन कीपिंग इट असाइड सर, Prevention. बिल्कुल प्रिवेंशन. सर बट देर आर पीपल हु आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट दैट लाइफस्टाइल इज देयर बैड लाइफस्टाइल इज ब्रिंगिंग ऑल दीज चेंजेस. अब जैसे बहुत बार न्यूज़ आती है, पीपल मतलब जिम कर रहे थे या फिर somebody who was on a marathon or something, those people are collapsing and having a heart attack. ऐसा क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पब्लिक अक्सर यही पूछती है कि ये तो बोले बड़े बहुत फिट थे, वो तो एक्सरसाइज करते थे, रनिंग करते थे, तो फिर ये कैसे हो गया. एंड वी आल्सो सीन कि एथलीट्स कई बार फुटबॉलर सडनली कोलैप्स कर गए. एक्सरसाइज में कई कितने वीडियोस हमने देखे हैं, एक्सरसाइज कर रहे थे सडनली जिम में एक्सरसाइज एंड कोलैप्स हो गया कोई. एंड दीज आर अनफॉर्चुनेट वीडियोस, अनफॉर्चुनेट डेथ्स. तो ये है कि तीन बातें ये है समझने की
कि 25% लोगों में तो हार्ट ब्लॉकेजेस सीवियर भी हो जाते हैं तो पता नहीं चलते, और जब माइल्ड होते हैं तो वैसे ही उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर हम किसी को फिट समझते हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम थी नहीं, हार्ट प्रॉब्लम से उनको पता नहीं चला। और सिवियर एक्सरसाइज या सिवियर एक्सर्शन के बाद सडनली ब्लॉकेजेस, चाहे वो 30% की भी हो, सडनली रप्चर होके क्लॉट बन के हार्ट अटैक कर सकती है, सडन डेथ भी कर सकती है। सेकेंड बात यह है कि हार्ट हेल्थ, ये जो कोलैप्सेस होते हैं, कॉमनेस्ट कॉज एडल्ट में हार्ट अटैक है, बट यूथ में कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है जो कि पता ही नहीं चली हो, एसिम्टोमेटिक। कई फैमिली हिस्ट्री में कार्डियोमायोपैथीज रन करती हैं जो फैमिली में होती हैं और सडन कोलैप्स और डेथ करती हैं। कई एरिथमियास होते हैं, हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो कि सडन कोलैप्स और डेथ करती हैं। सो क्लियरली हमारा मैसेजिंग ये होता है कि यस, और I also know कि some of the sudden collapses we saw in some eminent or some celebrities which happened on the visuals that we saw while they were exercising and doing an hour of exercising was the fact that nobody realized that they were also smokers. And smokers को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि एक्सरसाइज करते वक्त या एक्सट्रीम एक्सरसाइज में हार्ट अटैक और सडन कोलैप्स हो। तो स्मोकिंग अगेन इज बैड। सो कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, खाना अच्छा खाता हूँ, देखिए कितना स्लिम हूँ, और उनसे पूछो कि अच्छा व्हाट अबाउट स्मोकिंग? हाँ, स्मोकिंग तो हो जाती है, but smoking is one of the biggest risk factors causing sudden clotting of the arteries and a heart attack. Viral infections can suddenly cause that also. So COVID ने कितने heart attacks किए हैं in young people. So apparently healthy is very different to being really healthy. और really healthy पता तो तब चलेगा जब आपने regular checkups कराए हों और अपने risk factors को समझा हो। इसलिए हम कहते हैं कि heart health should not just be equated with exercise and gymming. It has to be equated with knowing your risk factors and controlling your risk factors. True. So, sir, so the young population who is seeing this podcast and वो जिम जा रहे हैं या फिर अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली शुड दे डू टू कीप दिस चेक कि हाँ भाई मेरा माय हार्ट हेल्थ इज़ ओके, इट इज़ नॉट कि मैं 20 मिनट रनिंग कर रहा हूँ ट्रेडमिल पे एंड आई एम नॉट फेसिंग एनी इश्यूज, दैट इज़ नॉट द पैरामीटर. सो व्हाट एक्चुअली इज़ पैरामीटर इन डे टू डे लाइफ to say yes I am fit? Any blood test, मतलब जैसे आजकल people are very conscious about this fact कि regular checkup कराना चाहिए, regular सीधे लाल पैथ लैब चले जाएंगे और सारे investigations करा लेंगे and suddenly in OPD they'll appear, मैम कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा है. तो what should they do, मतलब एक common advice youth को? So Dr. Arya, I'll take this and explain it in two parts. Firstly, of course, कि क्या चेकअप्स करने चाहिए. वैसे नो योर रिस्क फैक्टर्स वही आपका एक हेल्थ की बात है. एंड सेकंड पार्ट इज द जिम पार्ट ऑफ इट, कि जिमिंग बाकी अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है, बट व्हाट इज ऑल दिस अबाउट जिमिंग? सो माय फर्स्ट पार्ट दिस इज, like I said, Indians are prone to heart disease. Everybody is prone to heart disease. 3 times more than West, 6 times more than Chinese, and 20 times more than Japanese. We have incidence of heart disease in our country. So हमारा एक वेरी क्लियर फिलॉसफी है कि बाय द एज ऑफ 20 हर मेल एंड बाय द एज ऑफ 30 हर फीमेल को अपने रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए. और रिस्क फैक्टर्स क्या है? डायबिटीज, एक ब्लड शुगर का टेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर जो कि एक जीपी चेक कर लेता है, और अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल. ये 3 टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या है. एक ईसीजी और एक इको, आपकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज और कोई एबनॉर्मेलिटी सॉर्ट आउट हो जाती है. ये एक जीपी भी, एक ये बड़े चीप टेस्ट है, एक जीपी भी कर देता है और आपको अपने रिस्क फैक्टर्स उस वक्त से पता चल जाते हैं. इसलिए कहते हैं कि कैन यू बिलीव दैट 25% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर है, एंड हाई ब्लड प्रेशर इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक्स. और आधे तक लोगों को पता भी नहीं है कि ये साइलेंट किलर है. द सेम थिंग गोज फॉर डायबिटीज. 15% पॉपुलेशन हमारी डायबिटिक है. डायबिटीज इज राइजिंग इन द यंग. सो ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई उससे चेकअप हो जाता है. आपके रिस्क फैक्टर्स आपको पता चल जाते हैं. अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो साल में एक बार अपना यही चीज़ चेक करा लीजिए. और अगर रिस्क फैक्टर्स हैं
तो फिर आपको अपनी प्रिकॉशंस और ज़्यादा लेनी है। बिल्कुल। आपको पता है मुझे क्या क्या करना है जिससे कि मेरे को फ्यूचर में मैं प्रॉब्लम से बच सकूं ना। इनमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो लूज कर जाते हैं लोग, कि जे ठीक है मैंने कह दिया कि हर एक को चेक करा लेना चाहिए, पर जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फादर या मदर को लेस देन 60 की एज पे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हुई है, या जिसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को यंग एज पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको तो अपने चेकअप ज़रूर ही कराना चाहिए। और प्रिकॉशंस तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ऑब्वियसली जिनको मोटापा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, उनके तो चेकअप्स और फ्रीक्वेंटली ही होने चाहिए। सो ये तो हुई बात चेकअप्स की। अब कहेंगे कि ये जो आप सुन रहे हो चेकअप्स में, तो मैंने तो सिंपल चेकअप बता दी, बट कहीं कहते हैं जी टीएमटी करा लो, कहीं भी आपने सुना होगा कि कहते हैं सीटी स्कैन करा लो, बिल्कुल। और ये एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। तो ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, आप खुद जाकर टीएमटी ना कराएं। रिस्क फैक्टर्स है, डॉक्टर समझे तो आपका एक्सरसाइज टेस्ट भी करा देगा। और क्लियरली हमने देखा है कि हिंदुस्तान में, तो मैं कहता हूँ कि पर्सनलाइज अगर हम मेडिसिन करनी है, और किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज़ हुई है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी की फैमिली में एट अर्ली एज, किसी को अगर हम कहें कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर आ चुका है, और हमने कहना कि इसकी और प्रिवेंशन कैसे हो, कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर हम सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं। सीटी एंजियोग्राम में कैल्शियम स्कोरिंग, जो कि 5 मिनट का टेस्ट है, जिसमें कोई डाई नहीं दी जाती, और उसमें हमें पता चल जाता है कि कैल्शियम कितना डिपॉजिट हो रहा है आर्टरीज को, और हमें कौन से टारगेट्स रखने चाहिए कि आज से 10 साल बाद यू डोंट प्रिडिक्टिव मेडिसिन करें। आज से 10 साल बाद हार्ट अटैक ना हो, आज से 10 साल बाद बाईपास सर्जरी स्टेंट्स ना डर। सो उसका कॉस्ट क्या है सर? कैल्शियम स्कोरिंग का तो कॉस्ट 2-3 हज़ार रुपए है। ओके। एंड इट्स अ सिंपल टेस्ट, Affordable, एंड इट्स अ वेरी अफोर्डेबल टेस्ट और सिंपल टेस्ट। बट ये नहीं कि हर पॉपुलेशन को कराना चाहिए, दिस नॉट अ मास स्क्रीनिंग। बट जिसको प्रॉब्लम है या हो सकती है, या जिसकी फैमिली में हिस्ट्री है, उसको तो बचाना हमारा फर्ज है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेडिक्टिव मेडिसिन। जिम की बात आई, वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट जिम? यस यस वेरी मच। सो अक्सर लोग पूछा करते हैं या जिम अच्छी है या खराब है? What you know everybody is going to the gym now. So I just let me say कि एक बहुत अच्छी वेव है जिम्स। What does it say? एक तो कि हमारा youth is getting more health conscious. बिल्कुल। That's why they are going to the gyms. Their health would increase. They would be more healthy, but they could be heart healthy. They'd lose weight, feel more energetic, feel more positive, decrease stress, mental health, positivity. हर तरीके की बात है। बट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो ये है कि जिमिंग जा किस लिए रहे हैं। अगर तो वैनिटी के लिए जा रहे हैं कि अरे मेरी मसल्स अच्छी हों, अब देखो उसकी कितने डोले हैं, अब मेरे तो 2.5 किलो के होने चाहिए, उसके तो 1.5 किलो के हैं। सो देन इट बिकम्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ जो हेल्थ है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी हार्ट हेल्थ। वो तो वैनिटी है, वो फिजिक है, वो बॉडी बिल्डिंग है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर वो अग्रेसिवनेस आ जाती है, कंपिटिटिवनेस आ जाती है, साइकोलॉजिकल एक एक साइकोलॉजिकल, हाँ, अग्रेसिवनेस आ जाती है, और साथ में इनटेक ऑफ बैड सब्सटेंसेस, जो स्टेरॉइड्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एनहांसिंग ड्रग्स, वो सब आ जाती हैं। दैट्स व्हाट इज बैड इन जिमिंग। सो इन ओवरऑल आई एक्चुअली प्रमोट जिमिंग more for aerobic exercises and light weights, so that आप toned रहो, आप fit रहो, rather than for bodybuilding. And if we do it for the right reasons, we are doing the right thing for the heart health. Otherwise, we would just say, अगर आप जिम नहीं जाते तो brisk walking is 40 minutes a day is the best form of exercise for heart health. सर दिल्ली में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इतना पोल्यूशन है। You are so right that in Delhi the pollution negates the benefits of walking. walking. And that is why perhaps the gyms are a better place on the treadmill to do walking, at least for the youth, in multiple ways. So, sir, I have a colleague. He's a radiologist. He's senior, must be around 60s. He goes for a marathon daily. Daily we get updates. आज उन्होंने 21 किलोमीटर्स किया, आज उन्होंने 18 किलोमीटर्स किया, and I'm like, मतलब
but he's addicted to it and he really loves it and he cannot pass a day without doing it. But I'm like, मैं जब peak pollution में था दिल्ली, तो मैं उनको बोलती थी मत कीजिए सर, क्यों कर रहे हैं? But then he used to be like, I really love running. I think these people have to be appreciated. I have a 55-year-old colleague who actually every day posts कि आज मैंने तो 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते आया. And I'm just saying 100 kilometers cycle, just gets up in the morning, cycle. I think they have to be really encouraged and I think they are inspiring. But I would also guide one important thing जो आपने कहा कि checkups की बात है. There are people, athletes जो कि ये करते हैं वो करते हैं, कैसे उनको problem हो? So our messaging is so clear for anybody who actually goes into such extreme sports, should we say. चाहे वो heavy weight lifting करना चाह रहा हो, Yeah. ठीक है, किसी को शौक है बॉडी बिल्डिंग का, ज़रूर करे. बट अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में या सडनली डिसाइड कि मेरे को तो एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग करनी है, तो ऑलवेज डू इट विद अ चेकअप फर्स्ट. चेकअप करके ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए. Cardiac checkup like I've described, but even exercise tests, even CT scans, because extreme sports are the ones कि अगर आपको परेशानी पता ना हो, and like I said, परेशानी तो 25% लोगों में asymptomatic होती है, congenital hypertrophic cardiomyopathies तो पता भी नहीं चलती हैं. Actually, वही चीज़ precipitate हो जाती है on extreme exercise. Clotting, extreme sports are one of the biggest causes of clots developing in the arteries of the heart. Plaque ruptures. So we need full testing prior to taking up extreme sports so that safe रहें और उस sport को फिर enjoy कर सकें. डर के extreme sports करने का कोई idea नहीं है. और ये भी कहूँगा कि just because हम marathon running कर लेते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती is not a guarantee कि हमें परेशानी नहीं आएगी unless हमने checkup कराया. So, what are the early signs if I can predict in myself कि those एक तो recognition of those risk factors which you told and what else, मतलब कुछ ऐसे early signs होंगे जो मुझे feel होंगे and I can predict कि I can land up in trouble in next 10 years. Yeah. So science का अगर आप पूछो तो yes, we are always talking about the history part of it कि कितने हमारे पास risk factors हैं, because all those predict कि मेरे को problem future में होगा. Risk factors are multipliers, not additive. अगर मेरे पास family history है और मेरे को high blood pressure हो गया तो मेरे को 3 times possibility हो जाएगी heart disease. और अगर मैंने स्मोकिंग उसमें ऐड कर दी तो 10 टाइम्स हो जाएगी, डायबिटीज ऐड कर दी तो 15 टाइम्स मैं रिस्क फैक्टर्स होंगे. तो जस्ट हैविंग रिस्क फैक्टर्स और जो मैंने बताया स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, increased alcohol intake, sedentary lifestyle are all risk factors, and on top of that sits the family history जो कि हम चेंज नहीं कर सकते. And I say this both for men and women. पहले कहा जाता था कि males वहाँ men are more prone और women are less prone. ये सब अब बिल्कुल नहीं है. We talk equally for men and women because the biggest cause of death in women is heart attacks and heart disease, just like in men. 6 times more common than women cancers. So that is why all these have to be taken care of. तो ये तो एक हमारी risk factor की profile हो. Then I said कि अगर हमें कैल्शियम स्कोर किया है किसी का as a personalized test, और मैंने भी अपना कैल्शियम स्कोर करा चुका हूँ, अगर कैल्शियम स्कोरिंग 0 है तो हमारा प्रेडिक्टिव रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक becomes practically nil over the next 10 years. पर अगर हमारा कैल्शियम स्कोर हार्ट में आर्टरीज में कैल्शियम ऑलरेडी डिपॉजिट हो रहा है, देन वी नो कि अगर 10 से 100 वो स्कोर है तो माइल्ड चांसेस है, उसके बाद मॉडरेट होता है, 400 के बाद तो भी सिवियर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स. एंड दैट इज व्हाई अगेन प्रिवेंशन कम्स इन. एंड फाइनली जो आपने कहा क्या फील कर सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं, इज अगर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ऑन ब्रिस्क वॉकिंग और रनिंग और गोइंग अप स्टेयर्स और ऑन सिवियर एक्सरसाइज, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द चेस्ट और आर्म, और कहते हैं लगता है कि चल, women often can just feel breathlessness rather than anything else. Diabetics can feel no discomfort but just घबराहट. But these are the sort of signs that on exertion and exercise, if you're not comfortable, then actually do get a checkup done because there's something wrong happening somewhere in the heart. सर आपके इस डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है मैं अभी राउंड्स पे गई थी 3rd फ्लोर पे बाय स्टेयर्स एंड आई वाज ब्रेथलेस. No, but the commonest cause of breathlessness
is, of course, lack of Exercise. exercise. Lack of exercise and getting fitter. But फिर भी symptoms को breathlessness on exertion के symptoms को ignore नहीं करना. So मुझे लग रहा है मैं आपकी पेशेंट बनने वाली हूँ जल्दी. So addressing some lifestyle truths, sir. Are we overdoing fitness, gym culture versus heart health? No, I don't think we are overdoing it. I think, in a way, I would consider it a positive attitude of our youth. अक्सर, in fact, 20 years ago, मैंने एक survey किया था. And in that, I said कि हमारा youth exercise क्यों नहीं करता है? So I went to the park and interviewed 1,000, and majority of them were elderly people who were walking. और जो parks में चल रहे थे, और उनको आधा 75% of them को heart disease हो चुकी थी. It was a doctor's prescription कि अब आप चलिए फिरिए, walk कीजिए. So जब problem हो चुकी है तब वो कर रहे थे. But less than 40 was rare. Okay, now we see a new wave in the youth, which may be gymming, which is fine. But gymming, like we said, is a good Vanity. is exactly is for vanity mostly. And I want to transfer the youth to say, utilize this opportunity of the gym, less for vanity and more for heart health, which means aerobic exercises, light weights, toned up body, and a positive attitude towards gymming rather than an aggressive vanity based muscle building attitude to gymming. So और ये भी कहूँगा, this is very important. I'm also encouraged to see more and more gyms with are focusing to women also. yeah. I mean, normally gyms are much like a male-dominated Dominated area where women feel sometimes, hesitant unless they have colleagues, etc. going. But really, the positivity around gymming is make it for all and make sure it's women inclusive in multiple ways to help more women to be a part of gymming. So I in my stream, PCOS is in the rise is rising like anything. 6 out of 10 patients are PCOS patients. तो हम भी यही बोलते हैं, and people have started working out and people are looking into it. So it's a happy, good wave in the masses today. But yeah, people overdo it, and the approach is mostly vanity based. But I'm sure through your podcast, लोगों को ये पता लगेगा कि that should not be the end goal. Correct. End goal could be weight loss also. End goal could be stamina also. End goal could be multiple things for ourselves. It will just give us cholesterol कम हो जाता है weight reduction से. We actually, diabetes comes under control, high blood pressure under control. इसीलिए कहते हैं ना कि if you don't go to a gym, you can even exercise 30 minutes brisk walking. I say 40 minutes, which is 5 minutes warm up, 5 minutes cool down, and 30 minutes of brisk walking 5 times a week will actually help us to decrease our heart attacks by 25%. 25% just by walking is more than what any single drug can achieve. Statins, which are very, very famous. So what is more dangerous today, stress or cholesterol? Actually, when I answer this something like this, I say you must understand that coronary artery disease is multifactorial. और कई वजह से इकट्ठे होके हमें हार्ट डिजीज होती है. पर अगर हम सिंगल रिस्क फैक्टर कहें, स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल, तो दोनों डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं. बट लेट मी जस्ट से स्ट्रेस कैन बी अ बिगर रिस्क फैक्टर. एंड स्ट्रेस इसलिए रिस्क फैक्टर बिगर है कि स्ट्रेस की वजह से कई चीज़ें हो जाती है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बॉडी की इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्लॉटिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट अटैक्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है. वो तो आपने पिक्चरें तो कितनी याद होगी आपको जिसमें कि फादर Sad news मिल रही है, हार्ट अटैक आ रहा है. हार्ट अटैक आ रहा है, या उन्होंने कहा बेटा ने उससे शादी कर ली या बेटी ने उससे शादी कर ली और पिताजी हार्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया, और नेक्स्ट चीज़ वो अस्पताल में एडमिट हो गए हार्ट अटैक के साथ. सो यस, so that's a very important risk factor, and it upsets everything, causes high blood pressure, everything gets upset. Cholesterol, because cholesterol, it causes the spasm in the arteries, it causes degradation of endothelial lining. But सबसे important बात है कि stress is unmeasurable. आपको भी स्ट्रेस है, मुझे भी स्ट्रेस है. मेरे को स्ट्रेस हो गया आज कि जी ड्राइवर लेट हो रहा है या मैं कहीं लेट हो रहा हूँ, मैं पहुँच नहीं पा रहा टाइम पे.
आपको किसी और चीज़ का स्ट्रेस है कि घर में कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी। रात को डिलीवरी आ गई। Yeah, that could really be. I mean, our jobs as doctors, of course, is totally stressful. रात को डिलीवरी आ गई, पूरी रात सोई नहीं, या किसी पेशेंट को is not well and you always thinking कि कैसे उसको बेटर करूं. So actually, और किसी और का स्ट्रेस है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को घर में अपना अलग स्ट्रेस है. We are actually living in stress. It's just a different ball. It's how your body combats with stress is always the thing. कि how do you actually make sure कि आपकी बॉडी इस स्ट्रेस को ऐसे एब्जॉर्ब कर रही है कि वो आपके ऊपर नुकसान न How do you know that? And that's why we talk about yoga, that's why we talk about meditation, that's why we talk about hobbies, that's why we talk about every other thing in life than our own professions. क्योंकि वाकई प्रोफेशनल स्ट्रेस एंड लाइफ का स्ट्रेस तभी बस्ट हो सकता है जब हम एक लाइफ में तीन चीज़ें हैं. एक तो फैमिली के साथ टाइम बिताना, एक हॉबीज रखना, और एक स्पिरिचुअलिटी लाना. चाहे योगिक वे को आप स्पिरिचुअलिटी ही समझिए, बट स्पिरिचुअलिटी जहाँ मटेरियलिस्टिक लाइफ रहेगी तो स्ट्रेसेस आते ही रहेंगे. उसको काउंटर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी भी लानी पड़ती है. So, if you had to pick one food Indians should reduce immediately, what would it be? हिंदुस्तान में हम पैदा ही इसलिए हुए हैं छोले कि हम- भटूरे खाने के लिए. बिल्कुल हमें तो एंजॉय करना चाहिए हिंदुस्तान का खाना, क्योंकि वी हैव द बिगेस्ट वैरायटी ऑफ मील्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. बिल्कुल. बिगेस्ट वैरायटी. इतना अच्छा खाना है कि खाने को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट यस, आई थिंक ऑन दिस इम्पॉर्टेंट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हमारे दो चीज़ें ऐसी हैं. हम एक तो फ्राइड नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं. हम क्या, हमारे शौक क्या है? एग्जैक्टली आपने कहा, छोले भटूरे, पकौड़े. हाँ. आज चाय में क्या आ रहा है? आज दोपहर की चाय में काम पे हम बैठते हैं तो कहते हैं यस आज समोसे नहीं, अच्छा आज कचौड़ी आ गई, आज तो बड़ा अच्छा. सो यू सी, नमक पारे. बिल्कुल. I mean, everything that we eat is to do with fried trans fats, the worst form of trans fats, the worst form of fat which will hurt our arteries. तो ये एक है. एक उसमें नमक सबसे ज़्यादा होता है. हमारी 5 गुना नमक खाते हैं. WHO की जो रिकमेंडेशन से ज़्यादा 5 गुना नमक खाते हैं. ट्रांस फैट्स जो तला हुआ, रिपीटेडली तला हुआ ऑयल में यही कचौड़ी, यही समोसे, यही भटूरे सबसे अच्छे लगते हैं. और फाइनली व्हेन वी टेक दैट, और नमकीन और सॉल्ट डिश, वो तो यू नो एक्चुअली आई मीन देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि उसी पे थ्राइव कर रही हैं नमकीन बना के. एंड देन व्हेन वी लुक एट द अदर एस्पेक्ट, हमारा जो स्टैंडर्ड खाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं. आटा, रोटियां, राइस, मैदा, ये सब. हमें ब्राउन ब्रेड अच्छी नहीं लगती, हमें वाइट ब्रेड सबसे अच्छी लगती है. बगर और जाम लगा के. सो एक्चुअली ये जो दो खाने हैं हमारे, अच्छा मिठाइयाँ तो वो तो अलग ही होगी. तो इसलिए हम हिंदुस्तान में आप ये ना पूछे कि एक कौन सा खाना. ऐसे 3 तरह के पदार्थ हैं जो हमारी रूटीन लाइफ का बेसिस फॉर्म करते हैं, हमारे खाने का बेसिस फॉर्म करते हैं, बट आर नॉट गुड. और प्रोटीन्स हम कम लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम कम लेते हैं. सो वी एज अ होल आर नेशन ऑफ फूड लवर्स. अच्छी बात है, बट कभी कभी एंजॉय करना तो एब्सोल्युटली इज गुड. रूटीन डेली लाइफ हमारी हेल्दी डाइट्स में गुजरे और एक्सरसाइज में गुजरे तो हमारे हार्ट हेल्थ रहेगा. अदरवाइज ऑफ कोर्स वी आर गुड कि वी हैव ऑल दीज फूड्स, कभी कभी तो खाने ही चाहिए. बिल्कुल. सो इवन ओपीडी में अगर कोई पीसीओएस पेशेंट है. हाँ, बट एक भी ये भी कहूँगा डॉक्टर आर्य कि घर का खाना कभी खराब नहीं होता. आई वुड से दैट घर में लोग अब ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, ज़्यादा तेल नहीं डालते. एक्चुअली जो तेल यूज़ भी होता है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो कोई भी रिफाइंड, नॉन रिफाइंड, द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कुकिंग ऑयल्स आर ऑल फेयरली उनमें हेल्दी वर्जन्स हैं, हेल्दी वर्जन्स हैं. एंड दे आर, वो जो हमारे पास वर्जन्स होते जो वनस्पति होती थी, दोज वर रियली द बैड पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स. बट दैट इज बीन ट्रांसफॉर्म्ड. अब हर ऑयल कोशिश यही करता है कि हेल्दी ऑयल से, बट मात्रा भी हमें फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि
30 ml से ज़्यादा ऑयल हम ना यूज़ करें। और घी, लोग कहते थे घी खराब है, घी इज़ नॉट बैड। एक दो चम्मच घी का तो एक्चुअली वाकई ही उनमें फ़ायदा है। पर हम लोग क्या होता है कि घर का खाना थैंकफुली चेंज हो रहा है, थैंकफुली हेल्दियर बन रहा है, हेल्दियर तरीके से बनता है, लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि घर का खाना इज़ फार स्टैंडर्ड, फार बेटर। ये हम बाहर के जो खाने खाते हैं, और यही तो यूथ की लाइफ में आजकल हो गया है, बाहर का खाना, अक्सर बाहर का खाना, फास्ट फूड्स, बाहर से मंगाना, टाइम नहीं होता कुक करने का। दोज आर द अनफॉर्चुनेट थिंग्स जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। सर जैसे मतलब पीसीओएस पेशेंट्स आते हैं, उनका तो इंसुलिन सेंसिटिविटी हैज़ गॉन बैड, रेजिस्टेंस आ गई होती है। My take on this is usually क्योंकि those are housewives, working women, तो वो बोलते हैं कि मैम हम ना घर का खाना खाते हैं, बट इट डज नॉट इम्प्रेस मी एट ऑल बिकॉज मैंने आज देयर हिस्ट्री तुम घर में क्या खाती हो, तो दे बी लाइक मैम हम ब्रेकफास्ट तो खाते ही नहीं है, सीधे लंच खाते हैं। मैंने कहा जो जो मुंह में डालती हो बताओ। मैम देखो 2 बजे तक ना 5-6 कप चाय के हो जाते हैं। फिर उसके बाद देन व्हेन आई आस्क अबाउट देयर लंच डिटेल्स, सब प्रोटीन सोर्स बहुत बेयर मिनिमम होता है। इट इज़ मतलब दाल की कटोरी भले ही ले लेंगे, बट देन वेजिटेबल्स चटनी की तरह होगी। मोस्टली दिल बिंज ऑन ईदर राइस और रोटी। और these days yes, millets are coming up, or that thing is getting better, but still it is so carbohydrate rich कि because when I was in Germany, तो मैं तब ना कोसती थी उन लोगों को कि पहले तो पूरा एक बोल उठा के सैलड का खाएंगे, एंड आई यूज्ड टू थिंक हो गया इनका मील, बट दे यूज्ड टू स्टार्ट विद इट, एंड देन दे यूज्ड टू हैव वन पिज़्ज़ा टू देमसेल्व्स, एंड दैट इज इट। आई मीन उसमें अच्छे से टॉपिंग्स वगैरह, बट यू नो इट्स सच अ गुड way of having pizza. I mean, after the salad, glucose एकदम moderation में रहेगा। So I try to counsel. I hope लोगों को पता लगे ये सब चीजें। सैलड्स तो घास फूस समझे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कौन काकड़ी खाता जाएगा, मैं कहती हूँ हाँ। So let's go to myths versus fact. If cholesterol is normal, does that mean the heart is safe? नॉट रियली। हार्ट डिजीज तो मल्टी फैक्टोरियल है, जिस तरह मैंने बताया। शुगर का हो, डायबिटीज तो पता भी नहीं चलेगी। लिपिड प्रोफाइल में अगर हम देखें, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव ओके, सो लिपिड प्रोफाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मोस्ट सेंसिटिव, या हमारा जो टारगेट मार्कर हमेशा तक रहा है, वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। बट हिंदुस्तानी बड़े डिफरेंट है। हमारी हार्ट डिजीज एक डिफरेंट पैराडॉक्स में आ रही है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हुए भी इंडियंस में हार्ट अटैक क्यों होते हैं? इसलिए कि हमारा एक डिफरेंट पैराडॉक्स है, इसको हम कहते हैं सिंड्रोम एक्स। हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो कि मैं कहूँगा इंडिया में गर्थ ऑफ अ मैन 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो एब्डोमिन एडल्ट मेल का, या 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो एडल्ट फीमेल का, ये जो गर्थ है ऑटोमेटिकली प्रीडिस्पोज टू हार्ट डिजीज। एब्डोमेन का फैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हार्ट डिजीज इन मल्टीपल मैकेनिस्टिक वेज, जो हम अभी नहीं बात करेंगे। और ट्राइग्लिसराइड्स हमारा हाई होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हिंदुस्तान का है, जो वो इसमें हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बातें करते हैं। और एलडीएल हिंदुस्तान में नॉर्मल भी हो सकता है, तो ट्राइग्लिसराइड्स हाई होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है, हिंदुस्तान में अक्सर लोगों में कम होता है। सो ये, और फिर हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो हमारा ये है कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, हम कहते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अब इसके अलावा भी हम इसलिए देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, तो हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आजकल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट साथ में साथ दूसरे लाइपोप्रोटीन्स भी हैं, एपोबी, जो कि पूरी कोलेस्ट्रॉल की हानिकारक मात्रा की मेजरमेंट है। चाहे वो ट्राइग्लिसराइड्स हो, चाहे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे लाइपोप्रोटीन है, एपोबी को ध्यान रखते हैं, स्पेशली इन डायबिटिक्स, स्पेशली इन ओबीस पीपल। अगर हमारी एलडीएल की मात्रा ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश। और मोर रिसेंटली एलपी स्मॉल ए, एक और पार्टिकल होता है, लाइपोप्रोटीन पार्टिकल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पहले एक रिस्क फैक्टर
नहीं समझा जाता था, वो एक मार्कर समझा जाता था कि फैमिली में अगर हार्ट डिजीज होगी तो एलपीए हाई होगा, उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आपको भी परेशानी हो सकती है। अब तो ये भी देखा गया कि वो एलपीए इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, और हम उसको भी मेजर करते हैं जो कि हिंदुस्तानी में ज़्यादा पाया जाता है, सो दैट हमारे ट्रीटमेंट अग्रेसिव और मोर पर्सनलाइज हो सके। सो ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था पब्लिक को बताना कि सिर्फ एलडीएल ही नहीं, हमारी अब हिंदुस्तानियों में बहुत और रिस्क फैक्टर्स है जो हम देखते हैं। Sir, how reliable are ECG and TMT in detecting heart disease? सर आजकल तो ईसीजी कंप्यूटराइज्ड दे रहे हैं पैथोलॉजी लैब्स में। I know. So ECG is an important basic test। और मैं क्या, जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी को चेकअप कराना है और अर्ली चेकअप कराना है तो उसमें ईसीजी और ईको दो चीज़ें ज़रूर है। ईसीजी से अगर हार्ट अटैक हमें डायग्नोज करना है और हो रहा है तो ईसीजी कर देगा, बट अगर हार्ट डिजीज है और ब्लॉकेजेस हैं तो इस वक्त ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है। सो ईसीजी इज नॉट अ टेस्ट कि ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं। ईसीजी इज अ टेस्ट फॉर हार्ट अटैक्स या कुछ ऐसे एरिथमियास और कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो कहवे हाँ, विच कैन बी डिटेक्टेड ऑन एन ईसीजी इट्सेल्फ। सो एबनॉर्मल ईसीजी हैज़ अ नंबर ऑफ रीजंस और वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नॉर्मल ईसीजी होना डज नॉट मीन कि हार्ट डिजीज नहीं है, बट एबनॉर्मल ईसीजी होने से हार्ट डिजीज की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है एंड देयरफॉर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जहाँ तक टीएमटी की बात है, सो टीएमटी इज द फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट की ब्लॉकेजेस सिवियर ब्लॉकेजेस है कि नहीं। और हम सिवियर की इसलिए बात कर रहे हैं कि 25% सिवियर ब्लॉकेजेस भी अनडायग्नोज होती हैं जो कि हार्ट अटैक कर सकती हैं, जो कि परेशानी दे सकती हैं। और हमने ये भी कहा है कि जो लेस क्रिटिकल ब्लॉकेजेस हैं वो टीएमटी से नहीं पिकअप होंगे। सो कैल्शियम, हाँ, जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं, जो 30% की ब्लॉकेजेस, जो 50% की ब्लॉकेजेस हैं, जो आगे प्रॉब्लम दे सकती है और हम प्रिवेंटिव जिसके लिए हम इंस्टीट्यूट करें वो टीएमटी में नहीं पिकअप होगी। टीएमटी में एस्टैब्लिश क्रिटिकल मोर देन 70-75% जब आर्टरीज बंद हो जाती तभी पिकअप होती है, और वो भी एज अ क्रूड टेस्ट 40% लोग उसमें मिस आउट भी हो जाते हैं। जिनकी सीवियर ब्लॉकेजेस हो उनका नेगेटिव टीएमटी आएगा, और जिनकी ब्लॉकेजेस न भी हो उनका पॉजिटिव आ सकता है 40% लोगों का। बट फ़ायदा ये है टीएमटी का, ये इजीली अवेलेबल चीप इन्वेस्टिगेशन है, और जो कि हर छोटे शहरों में भी अवेलेबल है और हर एट डोर स्टेप अवेलेबल है। तो एक अच्छा स्क्रीनिंग टूल है, सो दैट अगर उसमें कुछ खराबी निकले तो एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सके। Sir, is angioplasty always necessary or can it be avoided in some cases? नो, इट्स नॉट एब्सोल्युटली ऑलवेज नेसेसरी। देखिए, दो चीज़ों में तो नेसेसरी है। अभी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी, आई मीन वी उसमें हम नहीं जाना चाहते कि किसकी एंजियोप्लास्टी होनी किसकी सर्जरी होनी। दोनों एक रोबस्ट मेथड्स हैं ऑफ रिवास्कुलराइजेशन की, जब ब्लॉकेजेस को ट्रीट करना है, और जो एंजियोप्लास्टी और स्टेंट के लिए सूटेबल है उनके लिए वो होना चाहिए, जो सर्जरी के लिए सूटेबल है बाईपास सर्जरी के लिए उनके लिए वो होना चाहिए। नाउ देयर ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग एरियाज भी हैं, बट ये कहना कि क्या एंजियोप्लास्टी, स्टेंट इम्प्लांटेशन या बाईपास सर्जरी हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस गलत। दो कंडीशन में तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता। हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है तो क्लियरली स्टेंट डालना, इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करना इज एब्सोल्युटली द ओनली ट्रीटमेंट। और मैं पब्लिक को समझा देना चाहता हूँ कि उस पर टाइम ना वेस्ट करे। सिंपल, मोस्ट रिलायबल एंड जो लाइफ बचाती है और जो हार्ट अटैक को बचाती है, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट्स हार्ट अटैक के टाइम पे। और अगर हार्ट अटैक होने वाला है, अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि इनिशियल जैसे वोल्केनो की चिंगारियां निकल रही हैं और फ्यूचर में फटने वाला है, उसमें अगेन एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी व्हाटएवर इज सूटेबल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जहां तक बात आई स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हम कहते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं, तो अनलेस ये ब्लॉकेजेस लाइफ थ्रेटनिंग या मेजर एरियाज में हो, दवाइयाँ भी अच्छा काम करती हैं। तो यही हम डिटर्मिन करना चाहते हैं टेस्टों से कि ब्लॉकेजेस हैं कहाँ पे, एंजियोग्राफी से कौन से एरियाज में हैं, ये एरियाज पे वाकई ही मेजर अटैक और डेथ क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। और जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, तो हम थैलियम वाले टेस्टों से पता करते हैं कि हार्ट पे कितना स्ट्रेन पड़ रहा है इन ब्लॉकेजेस से।
और अगर हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेन दे रही हैं या हार्ट अटैक मेजर हो सकता है, तो हम फिर एंजियोप्लास्टी या सर्जरी रिकमेंड करते हैं। या ऐसी जगह पे हो जाके सडन सडन डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, लेफ्ट मेन आर्टरी की ब्लॉकेजेस होती है, हर आर्टरी में मेजर आर्टरीज की ब्लॉकेज हो सकती है। ये सब फिर हम ट्रीट करते हैं। अगर माइनर आर्टरीज की ब्लॉकेज होती है, ब्रांचेस की ब्लॉकेज होती है, छोटी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होती हैं, सीरियस ब्लॉकेजेस नहीं है, पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तभी ब्लॉकेजेस उसको परेशान नहीं कर रही हैं, इन टेस्टों से हम कहते हैं दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, दवाइयों पे रहो, रेगुलर चेक्स कराते रहो। हम आपको बताएंगे कब आपको स्टेंट डालने की ज़रूरत है, बट अभी ज़रूरत नहीं है। और आप पूरे बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करो, अच्छी लाइफ उसके बाद आप खाते पीते रहो और मस्ती मस्ती करते रहो, नहीं। जब हम कहते हैं कि दवाइयाँ आपके लिए मीन्स नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है, वो टारगेट लेवल जो हमने आपके कोलेस्ट्रॉल के रखे हैं वो लाने हैं, अपना वेट रिडक्शन करना है, अपना मोटापा को ख़त्म करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और रेगुलर चेकअप्स कराते रहना है। सो इमरजेंसी अवेयरनेस के लिए यूजुअली जैसे कार्डियक अरेस्ट आया किसी को, फर्स्ट आवर विल बी द गोल्डन आवर जो हमें सिखाया जाता था। व्हाट शुड द फैमिली डू फर्स्ट? एंड मतलब पहले 1 घंटे में जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को क्या करना चाहिए? सो हार्ट अटैक का तो एक सिंपल इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वो सिवियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब ऐसा जैसा कि एकदम कंप्रेशन हो गया चेस्ट को, भारीपन, स्वेटिंग, हाथ में दर्द जा रहा है, नॉसिया, वॉमिटिंग और एक सेंस ऑफ डूम की, ये टिपिकल हार्ट अटैक होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन पर है और सस्पेक्ट हो रही है, तो पहली चीज़ है एस्प्रिन की गोली लेना, उसको च्यू कर लेना और नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है, नियरेस्ट बड़ा अस्पताल। नियरेस्ट बड़े अस्पताल में आजकल तो कॉमनली बड़े शहरों में सीधा कहेंगे कि एंजियोप्लास्टी करें, स्टेंट डालें। और किसी को दोबारा नहीं सोचना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर उस अस्पताल में सुविधा है तो वहीं इमीडिएटली, ये तो एक क्वालिटी मैट्रिक्स है कि हम चाहते हैं कि 20 मिनट में वो आर्टरी खुल जाए। ओके, जैसे ही अस्पताल पहुंचे सीधा कैथ लैब, सीधा आर्टरी खोलो, क्योंकि वो हार्ट अटैक को बचाता है, हार्ट को डैमेज से बचाता है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, लाइफ को सेव करता है। तो इसीलिए ये सबके दिमाग में होना चाहिए। अक्सर टाइम लोग वेस्ट करते हैं, अरे अभी तो ठीक था, मेरे को दर्द हो रहा है तो इन्होंने कह दिया कि सीधा एंजियोग्राफी करनी है। और मैं कल तो ठीक से घूम रहा था, मैं अपने चाचा जी को फ़ोन करता हूँ, चाचा जी भी डॉक्टर हैं, चाचा जी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया, देखो ये कह रहे हैं कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और तकलीफ़ें हैं उस वक्त सब, और एग्जैक्टली मिनट बाय मिनट टाइम वेस्ट होता जा रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा होता है। और फिर जबकि सोचा 1-1.5 घंटे बाद, तो 1-1.5 घंटे बाद तो हार्ट और 20% डैमेज हो गया, लाइफ शॉर्टन हो गई, हार्ट फेलियर हो रहा है, रिस्क बढ़ता जा रहा है। और फिर लोग डिसीजन लेते हैं 1-1.5 घंटे बाद कि चलिए आप कह रहे हैं तो करा लेते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए। सिंगल मैसेज है, हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट इमीडिएट, Shit. एंजियोग्राफी, स्टेंट डालना स्ट्रेट अवे। So मेरा next question यही था, what is one common mistake that costs the lives in Indian homes? I think taking time. वेस्टिंग टाइम। So coming to rapid fire, one daily habit for a healthy heart. एक्सरसाइज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एक हैबिट होनी चाहिए, नहाने की तरह एक्सरसाइज भी करें। लाइक आई सेड, 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक। यू कैन डिवाइड इट टू 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स ईवनिंग। यू कैन इवन डिवाइड इट इनटू कि टाइम नहीं मिला तो ऑफिस जाके वही 4 फ्लोर्स ऊपर नीचे चाय की पीने की जगह पे वो करें, कचौड़ी खाने की जगह पे वो करें। True. Worst habit for the heart. स्मोक, Smoking. क्लियरली, एब्सोल्युटली। So heart को मद्देनजर रखते हुए टी और कॉफी. It's okay in moderation either. Green tea, of course, is the best. There's no question around it. Sir, Coffee is a very bad stimulant, and we just don't like coffee. But caffeine तो caffeine तो tea में भी है. But I think coffee is a much bigger stimulant, and therefore we say avoid excess of tea or coffee. An excess means मेरे को तो 2 कप से ज़्यादा. Nobody should be drinking tea or coffee more than 2 cups. They have got harmful effects, and clearly
अगर कोई सोचता है, but you know why people drink all that? They get addicted to it. The more they drink, the more they get addicted. And actually, it's a very addictive issue. So I think अगर health wise just समझना है तो green tea. Otherwise, neither tea or coffee, both in a cup a day is fine. सर जब हम सफदरजंग में होते थे और रात को 20-30 डिलीवरी होती थी तो टपरी से चाय मंगा के 10 कप तो रात को ही हो जाते थे. डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स. That's right. और कॉफी पी के बिल्कुल. तो वेस्ट कॉफी पी के जीता है. ब्लैक कॉफी. ओह गॉड. सर जिम और वॉकिंग? Both or either, provided you're doing it for heart health fitness, जो कि हम समझा चुके हैं. एरोबिक्स. Aerobic exercises are light weights for body toning and muscle toning, and it's very important also. Light weights are also very important. So we should not just say walking. Light weights, थोड़ा सा muscle muscle building. One test everyone should do after 40. I would say the one test everybody should do, and we've gone through कि 20 साल से तो वो सब चेकअप्स करा ही रहे हैं डॉक्टर के पास. वी नो आर रिस्क फैक्टर्स. वन चेक, अगर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात कहूँ, एब्सोल्युटली कैल्शियम स्कोर. कैल्शियम स्कोर. CT calcium score, simple, cheap test, predicts our early blockages, और उसको हम फिर प्रिवेंटिव टारगेट बेस्ड प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं. सर मुझे लगता है घर जाके मैं अपने पेरेंट्स और खुद का सीटी स्कोर पक्का करवाने वाली हूँ. करा लेना चाहिए. One supplement that actually helps, if there is any. So statins, what about statins which people take on a daily basis? मतलब usually आजकल तो in fact dietitians के पास who are pretty famous and have experience, they are prescribing statins. Statins should not be prescribed indiscriminately. Statins should always be guideline based, और guideline based statin तब होती है कि या तो हमारे risk factors हैं या हमारी deposits आ चुकी हैं. like a calcium score. अगर मेरा calcium score 1 से 100 के बीच में है, that means I've got early deposits and my LDL cholesterol now should get to less than 70. और अगर मुझे हार्ट अटैक हो चुका है और मेरे को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो इट शुड गेट टू लेस देन 50. मेरी फैमिली हिस्ट्री और मेरे को डायबिटीज़ है और मेरे को हार्ट अटैक हो, इट शुड गेट टू लेस देन 50. सो वी एक्चुअली नो कि हमको किसको स्टैटिन्स देने हैं, विच वी कॉल सेकेंडरी प्रिवेंशन. बट इनडिस्क्रिमिनेट स्टैटिन सिर्फ बेसिस पे कि यार 120 है या 100 नंबर्स पे देना is indiscriminate, because lifestyle modification is the primary aim. But ये भी है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में हम वेस्टर्न गाइडलाइंस को ब्लाइंडली ना फॉलो करें, अगर हम वैसे ही कह रहे हैं कि हम 3 times मोर प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के, इट एक्चुअली मीन्स कि जो वेस्टर्न गाइडलाइंस के नंबर्स हैं हमारे लिए उससे और एटलीस्ट हम उसको एटलीस्ट 30% और कम करें वेस्टर्न गाइडलाइन से. तो येस वी हैव एन अर्लियर प्रीपॉन्डरेंस, बट इनडिस्क्रिमिनेट स्टार्टिंग नहीं लेना चाहिए. ये भी करूँगा कि हमारे मार्कर्स हैं, जैसे कि LP अगर हाई है बट हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल ठीक है या ट्राइग्लिसराइड्स है, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है. सो अगेन स्टैटिन्स या स्टैटिन लाइक ड्रग्स हमें हेल्प कर सकती हैं. डॉक्टर्स को ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, बिल्कुल. स्टैटिन्स कार्डियोलॉजिस्ट को ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए. और वो अब इंडियन गाइडलाइंस भी हैं जो वेरी क्लियर है कि किनको स्टैटिन्स मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए. सो आई एम डिसअपॉइंटेड कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है स्टैटिन्स का, और जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी खा रहे हैं. और इनफैक्ट दूसरी तरफ से ये भी कहूँगा बता रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वो रिलक्टेंट होते हैं खाने को. वो कहते हैं जी थोड़ी सी दे दो, इसको बढ़ाओ नहीं. तो थोड़ी सी की तो वही बात हुई कि जैसे हाँ कि जैसे कि थोड़ी सी मिठाई खा ली थोड़ा सा ये खा लिया. बट वी हैव टारगेट्स, वी हैव गोल्स, और वी हैव टू मैच दोज गोल्स एज गुड फिजिशियंस, एंड द पेशेंट हैज टू रियलाइज कि थोड़े से खाने से कुछ नहीं होगा. अनलेस वी मीट दोज गोल्स तभी हार्ट डिजीज प्रिवेंट होगी. One overrated health trend. One overrated health trend. You need to be on Instagram for that, sir. Probably excessive gymming or something. We've discussed that part. Yeah, I think you can say health trend में आजकल जिमिंग बहुत है, and health trend में जिमिंग बहुत ज़्यादा है.
So yes, you're right. That's an overrated. If it is not done the right way, it is an overrated health, and that is why ये questions arise कि वो तो इतनी gymming करता था, फिर भी problem हो गई. And yet we see visuals कि gymming करते करते attack आ गया. So yeah, it's an overrated. Exercise is not overrated. Exercise is the right thing, but gymming is definitely overrated. So आपने वो question लेके answer कर दिया. Thank you. Sir, one thing doctors don't tell patients enough. I think we need to take patient into confidence and explain to the patient. You know, communication is lacking, बिल्कुल. and communication is lacking because doctors are busy, really genuinely busy. They have to treat many patients. आप तो किसी भी अस्पताल में देख लीजिए, and I'm not just talking private. I'm talking about look at the government hospitals, flooded with patients. OPDs are flooded. किसको क्या समझाएं? समझ भी कई लोगों की कम होती है. So yeah, communication is a very important aspect. और आजकल जब मेडिसिन एडवांस हो रही है और इतनी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, और जहां आजकल चैट जीपीटीज एंड गूगल्स हैव बिकम डॉक्टर्स देमसेल्व्स, इस क्षेत्र में तो पेशेंट के साथ पर्सनलाइज्ड टच और बात करना और समझाना और उसको शेयर डिसीजन मेकिंग में लेना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है. So one personal question. You're a legend in your in our fraternity. अगर आप डॉक्टर नहीं होते क्या होते? अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैंने एक बार सोचा था कि मैं आर्मी में जाऊंगा. So you But- have that demeanor. बट और पायलट बनूंगा. बट मेरी हाइट ही नहीं ठीक निकली. तो जब स्कूल में था तो यही सोचता था, और जब कॉलेज में पढ़ा तो मैं बोला, ये तो बन ही नहीं सकते, हाइट ही नहीं है. नो, आई थिंक आई स्टिल बी अ डॉक्टर. Uh-huh. I'll still be a doctor. I'll still be with the patients. I'll still be doing something which was very much patient oriented. What is your hobby, sir, when you're not practicing or doing it? मेरी हॉबी हाँ. एक वक्त हुआ करती थी सिंगिंग. अरे वाह. एंड मैंने बहुत लेसन्स भी लिए. आई एक्चुअली हैड अ कॉन्सर्ट आल्सो. This was no more than 12 years ago. At a concert. And I didn't do badly. If I can have a concert and the 400 people That's great. in a hall can attend it, and I guess they clapped because many were my patients. So I then finally said to him, if you liked it, तो बहुत अच्छी बात है, thank you very much. But if you thought it was pretty bad, then think that at least I have a great interventional cardiologist. मैं तो प्लास्टिक तो अच्छी कर लेता हूँ मगर गा नहीं तुम सकता. लोग यहाँ बैठे हुए हो. So if you torture, if this was a torture for you, bad luck. But yes, so and unfortunately, my Guruji, I mean, he was so great, and I would be taking lessons, and I was very passionate about it. And unfortunately, during COVID times, he passed away. That created a bit of a gap for me. I'm going to get back. If you are, as you say, ki, what is one thing that I miss? It is truly singing, and I'm going to get back to it again. And I'm going to. Also with Thank you. It's something that it like I said, the meditation की वाली बात है. Takes the stress away. It also creates a joy across boundaries. कभी भी कहीं भी singing is something which you like to do and everybody appreciates, and it just be it even. I mean, you can be among Spanish colleagues, and they don't have to understand the song. But music transcends boundaries. yeah. Melody transcends boundaries. True. So you are leading one of the largest healthcare systems in India at Fortis Healthcare. What does leadership at that level actually involve day to day? As a clinician, because I'm a doctor, as a clinician, being in the management, how is it different? Firstly, I say that our curriculum should be defining, medical curriculum should be defining 2 or 3 things which are missing. एक तो should be defining communication, empathy, जो कि हमें मेडिकल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है. केयर एंड एम्पैथी, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट. अभी मेरे को याद है मैंने पहली चीज़ कहते थे, फेल इसलिए करते थे जब मैं पहुंचा, और मैं जब पहली चीज़ कही तो the consultant was unhappy, and the nurse was unhappy. The sister in charge of the ward was unhappy with me because उन्होंने पहली चीज़ कही कि आपने अपने आप को पेशेंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं हूँ, और उसको अपने उनके नाम से क्यों नहीं बुलाया आपने.
That connect. That connect. Mr. Brown, I'm Dr. Ashok Seth. Tell me how you are. Can I examine you? Examination के लिए भी Permission. permission, जो कि unheard of है. ठीक है? So these are the things that actually teach you how to really deal with a patient with empathy और उसको एक important समझें. So that's one thing we need to have a whole learning on. Communication avoids a lot of problems, but creates the biggest touch, but also avoids medical legal issues. अगर आप एक पेशेंट के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रखा हो, हमेशा एक वो बॉन्डिंग रखी हो पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ, तो पेशेंट की परेशानियां भी हल होनी शुरू हो जाती हैं. The second aspect is that we need to learn business and administration right as a medical curriculum हर एक को, क्योंकि जो लीडरशिप इशू है ना, ये लैकिंग होता है. हम लोग एज डॉक्टर्स वी गेट ट्रेन टू बी इन साइलोस. वी हैव आवर ओन टीम्स एंड वी एक्चुअली मेक श्योर दैट दैट टीम इज आर्स एंड वी इंटरैक्ट लेस विद कोलीग्स एंड वी एक्चुअली वर्क इन साइलोस दैट द डिसीजन वी मेक इज बिलीव टू बी करेक्ट. हम कभी भी अपने कोलीग से नहीं कंसल्ट करेंगे. मैन एम सेइंग कोलीग ऑफ आवर ओन स्पेशलिटी. दूसरी स्पेशलिटी के कोलीग के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, पर अपनी ओन स्पेशलिटी के कोलीग के साथ कभी नहीं करेंगे, बिकॉज हमने जो कह दिया वो है truth. Now, what does a leadership mean? Administrative leadership means nothing more than being inspirational and aspirational. So people need to look up to you for your qualities. But you're mainly a coordinator. You're not there as an authoritarian. Team leader or something. Authoritarian. You're not there to direct people what to do. You're there to coordinate people to deliver their best. What does that really Sir, mean? lovely. Huh? What does that really mean? Each person has his qualities. You should be intelligent enough to judge those people's qualities, shelve their deficiencies, and actually make them work a quality. One person in their team may be good at, say, and I'm just talking about an administrative team, and that's not clinic as a clinician. One person in your team may be actually good at setting up a schedule, but he would be very poor at communicating. Another person could be poor at communicating and patient interactions. A third person could just be good at replying to mails. A fourth person could just be good at the fact that he talks to you, thinks with you. Each person is own. Let's shelve everything and utilize their path. And finally, what to do? How do we actually do this? So leadership is all about, at the end, आप लीडर इसलिए हो कि वो आपको लीडर समझ रहे हैं. ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं लीडरशिप, कि आपने प्यूनिटिव एक्शन लेना है अगर उसने वो काम नहीं किया. वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको लीडर समझते हैं. सो बीइंग एट दैट लेवल इज ऑलवेज बीन इंस्पिरेशनल टू देम. सर, जब हम पहली बार मिले थे और मैंने आपसे पूछा था, सर बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट्स हैं लेकिन आप चेयरमैन कैसे बने फोर्टिस हेल्थ केयर के? मैं चेयरमैन क्लाउड9 हॉस्पिटल की कैसे बनूं? आज मुझे उसका आंसर आपने दे दिया. Nice to know, sir. But I mean, I got your point. It's not about being a leader, it's about being coordinator, it's about recognizing each and everyone's skill Yeah. and not being punitive about their flaws, but improving them at the end of the day. But you also got to walk the talk, and you've also got to be the best. That's right. And you never have to have insecurities. That's another important point of a leader. Leader cannot be insecure and say, therefore I will set up systems जो मुझे फायदा दे रहे हो just in case ये हो जाए. Yeah. That अपने happens फायदे in के a लिए when you're working अपने फायदे के लिए आप नहीं काम करते थे. आप insecure हो ही नहीं सकते, because you're looking at the larger institution. Yes, you're looking at the institutional good, and everything is institutional, and every aspect that you do is institutional or departmental or in that way progress. And finally, at the end of the day, हमने patient care वाली बात ही करनी है ना. At the end of the day, it's all patient care, and it's so you never actually you walk the same talk, because they see you every day doing what you, even at 10, 12 o'clock at night. If a patient's relative asks me something, I will answer at 12 o'clock at night in the same manner as it would be in the morning. And my whole team needs to see that, to say कि this is communication, this is how we got to talk. सर, शायद एक क्लिनिशियन को जो गोल्स चाहिए होते हैं अचीव करना एक लाइफ टाइम में, आप सब कर चुके हैं. व्हाट मोर इज लेफ्ट?
what more is left? There's a lot left on multiple fronts. Ah, I told you about the music. So those are multiple fronts which are away from professionally, if I have to say. Firstly, I still want to give to India new techniques, new technologies as they come. But I want to make value medicine. Well, मैं जो business की बात सिखा रहा था कि they should teach business in medical schools or medical college में, finance, others. Because आप ये सोचो कि to deliver healthcare हमें value medicine देनी है. बिल्कुल. We're not talking about only private hospitals which need to know business. Even the government hospital leaders or administrators or even the superintendent of the hospital, agar government is spending the money, it has to be utilized appropriately. Patient, the nation is paying the tax for that money. So nothing's coming free. चाहे वो private hospital हो चाहे government And even institution. the administration is asking the clinicians at the end of the day what all to Correct. get, what not to get. Why has it got to be expensive medicine? Why how much duration? Why everything revolves around value care. And value care revolves around कितने कम पैसे में कितनी efficient and quality based medicine हम दे सकें. Quality care has to come at a value. So when we talk about business, as much business sense is important in the government hospitals and our public hospitals where income tax for public की money ही है जो government spend कर रही है, or in a private system where we actually have to spend money and the patient has to pay for it. Business sense forms the basis of delivery of value based quality medicine. इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ me as the chairman of Fortis Escorts Institute does not need to understand business. Everybody downstream in that healthcare delivery needs to provide value-based care, and every doctor and every administrator has to be have good business and financial sense. So that's very important. Getting down to और क्या करना चाहता हूँ जिंदगी में? Yes, I've the quality care that needs to come to masses. We got to strive towards that through numerous innovations and ideas. Really down to masses. It's great to see that I've trained so many interventional cardiologists. जो कि probably 3 generations of interventional cardiology got trained by me. There were only 5 of us, and we started these training programs. In a way, I do 6 major training programs every year in every aspect. And it's good to see that even smaller and smaller cities may आज good cardiologists are going to smaller and smaller towns. Tier 3 जो हम कहते थे have become literally tier 2 cities. Tier 2 has become tier 1 called super cities. And we see a lot more happening downstream. If you can get quality care also to the same extent as we give at our institutes or your institutes in Delhi, if the same quality care goes down, so it's not just availability, quality also is needed by a country. That would be great. And finally, if you say what else I missed out on, and I'll just say that to the youth, spend people around you, your family, has kept on sacrificing a lot. Everybody close to you has kept on sacrificing a lot so that you could be successful. Spend quality time. Spend quality time now with the near and dear ones in life so that you never repent that you lived your life for yourself and never lived it for others. सब मैंने अभी तक जितने भी clinicians को बुलाया है and I've asked this question, one regret or anything they want to do in life. Everybody is, अपने life में बहुत कुछ achieve किया है and they always have that regret कि अपनी family को ज़्यादा time नहीं दे पाए. Yeah. So, if you say कि to a 30-year-old, what one message I would like to give? Apart from that regular exercise or ये करो वो करो, I just start अभी से inculcating in your life family time and hobby time. Start giving that. Because अगर शुरू से नहीं आदत की ना तो भूल जाओगे. In that rat race you will forget it. Think of it like नहाना. Think of it like exercise. Think of it कि इस हफ्ते या आज क्या मैंने किया family time. अगर नहीं इनकल्टेट करेगा तो भूल जाएंगे तो बड़ी अभी अजीब बात होगी जब बाद में याद आएगा कि कई साल गुजर जाते हैं और फिर you miss out on very valuable moments of life. Oh, you can't catch them back again, no?
Thank you, sir. It was really, really nice to talk to you and get so much information on my personal front. Also, got to learn a lot, and I'm pretty sure audience to ये podcast सुनेगी, they'll imbibe so many things. और calcium test हम पक्का कराएंगे to get to know our heart status. Thank you, sir. It was lovely having you here. Thank you, Dr. Arya. It was always wonderful talking to you. लगता था कि घर में बैठ के बातचीत हो रही है.